جو پی ٹی آئی کا کہنا ہے، مطلب ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم پہ الزام بھی لگائیں، ہمیں آپ غدار بھی کہیں، آپ سب کچھ کہیں، ہم یہ سیکریفائی بھی کر رہے ہیں. آف کورس صوبے اس وقت سیکریفائی کر رہے ہیں، تو بدلے میں آپ کیا یہ ایشورنس دیں گے کہ ان کی حکومت کو جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز نہیں کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ابھی تو ہم نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، اور تیمور صاحب آپ ہمیں بولنے کا موقع دیں تو ہم آپ کا شکریہ ادا کریں. اچھا، لیٹ می اپریشیٹ. پہلی دفعہ کوئی انہوں نے اچھا کام کیا ہے اتنی لمبی ہسٹری میں، 15 سال سے حکومت میں پہلی دفعہ آپ اور وفاق جو ہے تو الائنڈ نظر آئے، اور ہم ستائش کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی کنٹریبیوشن ڈالی ہے اس سیکریفائس میں. اور یہ بھی مت بھولیں کہ جس پنجاب پر تیمور صاحب آج بھی کرٹیسائز وہ کر رہے ہیں، اس پنجاب نے سب سے بڑا حصہ ڈال دیا. پنجاب کی 3 گنا ریسورسز ہیں، 3 گنا حصہ ہے. یہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے. میں سٹیٹمنٹ نہ کریں. نہیں، میری رائے ہے. نہیں، رائے نہیں ہے، یہ میری رائے ہے، میں دے رہا ہوں. نہیں، وہ 1450 میں سے 700 یعنی 750 ساڑھے 700 ارب روپے 750 ارب روپے. مطلب ان کی بھی کنٹریبیوشن بڑھی ہے نا، تو بڑے بھائی نے پھر بڑے بھائی جیسا رویہ بھی اچھی دکھایا. بات ہے، چلے دونوں نے کر دیا. اب آپ کی تعریف میں کروں وہ آپ کو اچھی لگتی ہے، بڑے بھائی کی تعریف کروں تو آپ میری کریکشن کرتے ہیں. نہیں، یہ دس از ڈبل سٹینڈرڈ. اس طرح نہیں ہوتا. یہ دونوں صوبوں نے 100 ارب. آگے چلتے ہیں. میرے سوری یہ فریم ورک نہیں ہے. نہیں، کریکشن کر دینا. اکانومی کی بات ہے. مہتاب صاحب کین آلسو کریکٹ می. The way that it has actually been decided اس کے جو ہر صوبے کو اس سال کا شیئر گیا ہے نا، ٹھیک، شیئر وہی جائے گا. تو ہر صوبے کو اتنے ہی پیسے جائیں گے جو اب وہ کٹوتی اے ڈی پی میں سے کریں تو وہ ان کی مرضی. باتیں کرنا ٹی وی پہ بڑی اچھی بات ہے. ہم نے اس وقت بھی آپ کو بولا تھا جب آپ کو وفاق سے پیسے مل رہے تھے، قبائلی اضلاع جن کا ذکر آج آپ کر رہے ہیں، وہاں کے لوگوں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمارا اکاؤنٹ الگ کر دیں. قبائلی اضلاع کے لیے جو خیبر پختونخوا کو پیسے جاتے تھے آپ نے سارے ایک ہی اکاؤنٹ میں ڈال دیے. آپ نے قبائلی اضلاع پر لگائے ہی نہیں، وہ آپ نے اپنے حلقوں میں لگا دیے. وہیں سے تو پرابلم کریٹ ہوا نا. یہ بھی سراسر جھوٹ. آج آپ یہ کہہ رہے ہیں، اچھا بتا دیں اگر پھر 2 اکاؤنٹ ہے آپ کے پاس تو پھر آپ بتا دیجئے، جواب دے دیں. مجھے میری بات تو کر رہے ہیں. اگر آپ بجٹ کے ڈاکیومنٹس دیکھتے تو جو گرانٹ 61 تھا وہ قبائلی اضلاع کا تھا، یعنی کہ اکاؤنٹ ان کا علیحدہ تھا. دیکھیں میں بتاتا ہوں. اب بتا دیں گرانٹ 61 قبائلی اضلاع کا تھا یا نہیں تھا؟ مجھے سب میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کے سوال کا جواب دے دیا. سر دس از ناٹ اے کراس شو. چلے آپ اگر آپ اپنی بات کر سکتے ہیں تو مجھے اپنی بات کرنا. اچھا اختیار صاحب، یہ امپورٹنٹ معاملہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بات ہو اس کے اوپر. اور آج اچھا دن ہے، آج اچھا دن ہے. مان گئے کے پی نے کوئی سہیل آفریدی کو آپ دل کھول کے آج اپریشیٹ کریں. عمران خان سے ملاقات کرائیں، ہاسپٹل لے جائیں، عدالتیں کھولیں. شروعات تو میں نے تعریف سے کی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے ان کو تعریف میری جو ہے اچھی نہیں لگی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ میں تنقید ہی کروں. ملاقات تو کروائیں گے نا اب آپ سہیل آفریدی صاحب سے. خان صاحب میں ایک بات بتاتا ہوں، جہاں پر قومی ایشوز آ جاتے ہیں نا، this is what we are trying to tell them from the last so many years کہ جب قومی مفاد کی بات آتی ہے تو اپنی پارٹی کے نظریات ایک سائٹ پر رکھتے ہیں، پھر آپ پاکستان کے 2 قومی نظریے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. نیشنل ایشوز پر کانسنسس جو ہے یہ ہماری کلی طور پر ہماری ذمہ داری ہے. سر ابھی اگر آپ آئیں گے اور اسی طرح گڈ بیہیویئر اور اپنا گڈ جسچر شو کریں گے تو میرے خیال میں اگر آپ ہماری عزت کریں گے ہم آپ کی عزت کریں گے، آپ ہمارے نظریے کی عزت کریں گے ہم آپ کی نظریے کی عزت کریں گے. ہو جائے گی آپ کا خیال. میرے خیال میں راستے کھلیں گے، ایوینیوز کھلیں گے. لیکن یہ سلسلہ یہ یہاں پہ رکنا نہیں چاہیے، اس کو آگے بڑھنا ہوگا، اس کو آگے چلنا ہوگا تو چیزیں تب آ کے ٹھیک ہوں گی. اور قبائلی اضلاع کے لیے جو آپ نے اپنا سینہ اور دل تنگ کیا ہوا تھا، خیبر پختونخوا کی حکومت کو وہ سینہ اپنا کھولنا. اچھا بالکل، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. لیکن جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا ہے وہ میں بریک کے بعد آپ سے پوچھوں گی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں ہم اس لیے ہارے کہ مہنگائی بہت زیادہ تھی اور مہنگائی بہت زیادہ ہے. انہوں نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا، اس میں سے ایک یہ ہے. تو آپ کی شکست اور جی بی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. آپ کی جو ناکامی کی وجہ ہے
GB में वो महंगाई बहरहाल है, परफॉर्मेंस आपकी गवर्नमेंट की, उस पर सवाल उठे। अच्छा, एक तो इसको शिकस्त का मैं नाम नहीं दूंगा, लेकिन ये है कि आप नाकामी ज़रूर कह सकती हैं, लेकिन अभी भी अपनों से हार, आप हार भी जाए तो यानी नहीं, वो इत्तेहादियों से हार भी कोई हार है। कोई पॉलिटिकल वो मुझे पार्टी, गाना भी याद आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टी अगर आपसे जीत जाए ना तो इतना हमारा दिल और सीना बड़ा है, हम कहते हैं हम ना सही, हमारे जैसा कोई और सही, कोई सियासी नजरिए वाले लोग हों, अच्छा, जिनको बात करने की और समझने की कम से कम इसका हो तो ठीक है। तो परफॉर्मेंस वजह मैं ये बताऊंगा कि उसमें दो तीन चीजें थी। अब आप उसमें महंगाई का एलिमेंट डालना चाहें तो जरूर डाल लीजिए, लेकिन जो लैकिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने अपनी कैंपेन बहुत लेट शुरू की, इवन आफ्टर ईद हमने अपनी कैंपेन स्टार्ट की। मियां नवाज शरीफ साहब का दौरा भी आपने देखा कि बड़ा लेट ही हुआ, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सेकंड जो एलिमेंट मैंने वहाँ पे देखा, ख्वाजा साद रफीक साहब ने दुरुस्त फरमाया, PMLN में, ये आज मैं आपके शो में ये मैं बबांगे दोहल कहता हूँ, मुझे 35 साल हो गए, हमारी जमात में ये रिवायत नहीं है कि इनको टिकट दे दें और फिर इनको पैसे भी दे के आप इलेक्शन लड़ें, बस सिर्फ टिकट ही देते हैं, पैसे नहीं देते हैं। जबकि हमारे साथ जो वहाँ पर दीगर जमातें थी, उन्होंने वहाँ पे अरबों रुपया लगाया। आपका इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ है? उन्होंने भी लगाया, PTI ने भी लगाया। उनके पास कहाँ से दीगर रुपया आ गया? है, उनके पास एक बहुत बड़ा सिस्टम है पैसे इकट्ठे करने का और देने का है। तो आप इल्जाम लगा रहे हैं? इल्जाम नहीं, वहाँ पर रिवाज भी है उनका और उनका एक मैकेनिज्म भी है। वेयर PMLN में ऐसा कोई मैकेनिज्म है ही नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी के जितने इलेक्शन लड़ा हूँ अपने बलबूते पे लड़ा हूँ, और जितने लोग आप PMLN के जानते हैं वो सभी ऐसे लड़ते हैं। अच्छा, हमारी तो जमात आपकी परफॉर्मेंस का इसमें कोई आज नहीं है, वो भी हो सकता है, लेकिन अब जिस एरा में और जिस उसमें सियासत दाखिल हो चुकी है, PMLN को अपने जो कन्वेंशनल टाइप ऑफ पॉलिटिक्स है उससे निकलना होगा। मेरे ख्याल में अगर निकलेंगे नहीं तो फिर उनको फायदा नहीं होगा। ये वही नोकिया और सैमसंग वाला काम हमारे साथ झगड़ा साहब, अब ये हमने वहाँ पे ये भी देखा कि PTI वहाँ पे नहीं जीती, इंडिपेंडेंट्स जो थे वो भी नहीं जीते। मजलिस की एक निशिस्त आई है, आज़ाद 5-6 हैं, उसमें कितने हैं? 2 तो ये कह रहे हैं कि जी हमारे थे, पीपल्स पार्टी के भी वो कुछ लोग हैं। तो क्या वजह है, क्या PTI से भी लोग मायूस हो गए? देखिए, मेरी सजेशन है कि GB के फ्रॉड इलेक्शन पे टाइम ज़ाया ना करें। अगर एक पार्टी को सिंबल ही ना मिले और उनको कैंपेन करने की इजाज़त ही ना मिले, उस दिन इख्तियार वली साहब ने कहा कि वो शानदाना गुलजार और शाहिद खटक NOC के कैंपेन करने गए थे। मैंने दोनों से पूछा था, उन्होंने कहा नहीं, हम पुलिस से छुप के जो है वो जा रहे थे जैसे हम कोई क्रिमिनल्स हो। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। जरा इसी चीज़ पे आते हैं। ये तो फिर वो बाकी दोस्त भी छुप के कर लेते हैं। 1700 अरब रुपए की या 1200 अरब रुपए की बात है। दिस इज़ अ ह्यूज डेवलपमेंट इन द नेशनल इकोनॉमी या जो नेशनल फाइनेंशियल डिस्कोर्स है। ठीक है जी, इस पे एक बात तो हो गई कि इसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या होनी चाहिए। सोहेल अफरीदी के लिए क्या होनी चाहिए, PTI के लिए क्या होनी चाहिए, इमरान खान के लिए क्या होनी चाहिए, क्योंकि गैर शर्तिया हुई है। इसकी एक दूसरी इम्प्लिकेशन भी है जो कि वफाकी हुकूमत की फेलियर है। मेहताब साहब ने उसको एक हल्का सा टच दिया। मैं इस पे पिछले चंद दिनों से बात कर रहा हूँ। जब तक वफाकी हुकूमत पाकिस्तान में अखराजात की कटौती बड़े पैमाने पे ना करे, आपकी ना मईशत चल सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी ना ग्रोथ हो सकती है। आप जितना टैक्स कलेक्ट करें, आप ये सूबों से कलेक्ट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वहाँ पे इन्होंने दिखा दिया कि 4 साल 5 साल हो गए, दे हैव नो एपेटाइट। सरकार के साइज़ के कम करने का कोई प्लान आपको नज़र आया? जो 2500 अरब रुपए के पेंशन्स हैं वफाक और सूबों के मिला के, जो 4 साल के अंदर डबल होते हैं, उनको फाइनेंस करने का कोई प्लान नजर आया? 1 लाख से ज्यादा जो गाड़ियां हैं ये सारी हुकूमतों के पास, जब ये सारे अभी आज ही मिल रहे थे, इस पे क्यों नहीं बात कर सकते थे कि ये 1 लाख गाड़ियां मोनेटाइज हो जाएं? जब दिल्ली जिमखाना नरेंद्र मोदी वापस ले सकता है क्योंकि वो स्टेट लैंड पे है, तो लाहौर जिमखाना जो 220 अरब रुपए की जमीन पे, सरकारी जमीन पे पड़ा हुआ है, और 5
5,000 रुपए रेंट दे रहा है ताकि क्यों लाहौर वापस की नहीं हो अशराफिया सकता? ले बिल्कुल, सके। बिल्कुल। इस टाइप के आप Very F6, important, very G6, important. GOR, जी हाँ। जो दूसरा वो लाहौर में रेलवे कॉलोनी है, मैं नाम भूल जाता हूँ, उसके ऊपर ठीक है जी, अखराजात क्यों हम जो जो है शहाना वो ये अखराजात assets- ब्यूरोक्रेसी के हैं, जो देखिए हुकूमत ये के हैं, सारा जो- रिफॉर्म के थ्रू बिल्कुल, ये पॉसिबल इस पे मैं इख्तियार वली खान साहब जवाब चाहूंगी। इख्तियार वली खान साहब रिस्पॉन्ड करेंगे अखराजात, और बहुत मुनासिब ज़बरदस्त बात की है तैमूर झगड़ा साहब ने कि हुकूमत के अखराजात में कमी का कोई इरादा, कोई प्लान, कोई रिफॉर्म्स इस हवाले से। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बात पहले हमने भी की थी, ये इमरान खान साहब तो इन बातों पे वोट लेकर आए थे ना, जो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, उसमें से एक बात दावा ये भी था कि हम ये अखराजात ख़त्म करेंगे, और जो महताब भाई ने बात की कि जो अरकान असम्बली हैं सर इमरान खान को गए हुए 4 साल हो गए हैं, अब आप आगे की बात किया ना, इन्होंने कोट किया कि उन्होंने भी ये बात की थी कि जो MNAs हैं, MPAs हैं, उनके तरक्याती फंड जो हैं वो नहीं होने चाहिए, हालांकि फिर दिए सबसे ज़्यादा उन्होंने ही। मैं खुद इस बात पे बिलीव करता हूँ, आफ्टर गिविंग द 35 years ऑफ द प्राइम टाइम ऑफ माई लाइफ टू दिस डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड पार्लिमानी सिस्टम एंड सिविल सुपरमेसी एंड वट एवर, मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को इन चीज़ों से निकलना होगा। ये जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं इसको लेजिस्लेशन के लिए छोड़ दें, जो तरक्याती फंड्स हैं, तरक्याती काम है, ये जिनका काम है उनको सर इसके लिए लोकल बॉडीज इलेक्शंस लोकल बॉडीज होने जो कि चाहिए, आप लोग नहीं करवाते और हैं। लोकल बॉडीज उनको फंड्स देने कराना चाहिए। ना कराना, हम तो कराने भी लगे हैं, वैसे हमारे प्रोग्राम में शामिल खैबर है पख्तूनख्वा में सिर्फ? नहीं, हाँ। उसके लिए हम ये सोचते हैं, हमारी तजवीज़ ये है कि लोकल बॉडीज का सिस्टम जो है वो फेडरल से लेकर तमाम सूबों में यूनिफॉर्म, उसके ऊपर हम बात करेंगे, मगर अभी आप अखराजात में हुकूमत के कमी देख रहे हैं इस बजट में या नहीं? मैं अभी जहाँ से उठ के आया हूँ तो वहाँ पर ये बात हो रही थी कि हुकूमती अखराजात में कमी लाई जाए, और ऐसी कमी कि वो नज़र भी आए और महसूस, मतलब ये नहीं कि दूध की जगह पनीर इस्तेमाल कर लें, ये नहीं, इस तरह की नहीं, मतलब सही ऐसे वाली करना भी चाहिए, और इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। तैमूर झगड़ा साहब बहुत खुश हुए इस बात के ऊपर, तो ये खैबर पख्तूनख्वा में भी करना पड़ेगा, ये सिर्फ वफाक में नहीं करना पड़ेगा। देखिए मैं तो जब हम वहाँ पे पेंशन रिफॉर्म शुरू कर रहे थे, जो अभी मुझे फ़ख्र है कि वो वफाक में शुरू हुआ है, और एक काम है जो मैंने किया सारे सरकारी मुलाजमीन के भले के लिए, क्योंकि ये जो आज दिन आ रहा है जब वफाक सूबों से पैसे मांग रहा है, सूबों को पता नहीं कि पैसे कहाँ से आएंगे, वो इसीलिए आ रहा है कि हम अपना फाइनेंशियल मॉडल ठीक नहीं करेंगे। ठीक, हर बार जब मैं उस पर बोलता हूँ, ये सरकारी यूनियंस की मुझे 2,000 गालियां सुनती है, मेरा बेचारा सोशल मीडिया वाला कहता है मैं क्या करूं, मैंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, पीटीआई को भी गालियां पड़ती है तो बड़ी कमाल है। ये तो आजाद देखें हैरान कर दिया मुझे। बट वो ये बात साबित करता है कि सरकार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी ली है, 75 साल इन्होंने ये भर्तियां की हैं, ठीक है जी, वो वहाँ पे बैठे हैं, उनके पास कुछ करने का नहीं है, बात तैमूर साहब आपकी, तो ये हजम होने वाली नहीं है, बात हो रही है ना, ये मैं सीरियसली कह रहा हूँ, 75 साल 75 साल किसने किए, उसमें आप भी शामिल थे, खत्म हो गया, उसमें आप भी शामिल थे, तो ये किया 5वें साल 15 साल मुसलसल हुकूमत, IMF और वर्ल्ड बैंक के कहने के बगैर किया। और जब मैं हार्वर्ड में मिला था औरंगजेब को पिछले साल, अभी तो मेरा नाम नो फ्लाई लिस्ट पे, उन्होंने मुझे कहा कि आपने बड़ा जबरदस्त काम किया था। मैंने कहा जी ऐसे करें, चारों फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ मिलके अब इसको करंट एम्प्लॉइज को एक्सटेंड ये हो सकता नहीं है, कर ये सके। मुमकिन है। ये कैबिनेट रीशफल हो रही है इलेक्शंस के, ये बजट के बाद सुनने में आ रहा है, और महसूस भी हो रहा है कि महसूस हो रहा है या सुनने में आ रहा है? महसूस हो रहा खुश है लग कि रहे हैं इख्तियार वली अच्छा, साहब। मैं एक बात आपको बताऊं कि मैं इस बात पे बिल्कुल कायल हूँ कि यानी अभी हम अखराजात की मैं कमी इस की बात बात पे कर रहे थे, कायल आप कह रहे हैं हूँ, एक्सपैंड हो हमारे रही है। कुछ वुज़रा जो हैं उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबकी कारकर्दगी की रिपोर्ट कॉल कर रखी है, और जिनकी कारकर्दगी पुअर होगी मेरे ख्याल में उन सबको फायर कर देना चाहिए, नए लोगों को पार्टी भी लाएं, हिस्सा बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल इम्कान बन है। सकती है, हमारे इत्तेहादी हैं, और हो सकते प्राइम मिनिस्टर तो यही रहेंगे ना जी, वजीर आजम शहबाज शरीफ ही रहेंगे। अच्छा। ये मैं इनको खबर दे दूं कि आपने वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ ही गुजारा करना होगा, और सुहेल अफरीदी एक मुलाकात ठीक करने से काम नहीं होगा, अगली मुलाकातें भी उसकी ठीक ही होंगी। अच्छा, ये बताइएगा कि चलते चलते लोगों को उम्मीद भी दिलानी है कि ये बजट जो है पिछले बजट से बेहतर होगा।
मेरा ख्याल है जी कि हुकूमत के पास वो स्पेस नहीं है कि कोई मेजर ट्वीक कर सके। आप मुझे ये बताइए, अभी अखराजात के बारे में बात हम कर रहे हैं, 18th अमेंडमेंट के बाद जो सब्जेक्ट्स डिवॉल्व हो चुके हैं उनके मिनिस्टर्स क्यों हैं और वो मिनिस्ट्रीज क्यों हैं? कह रहे हैं, पर बड़ी खबर दी है ब्रेकिंग की, परफॉर्मेंस देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर फारिग करेंगे कुछ। आपको बड़े कोहना मश्क मिनिस्टर जो हैं वो फारिग होते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। कोहना मश्क क्यों? अच्छा, ये तो बहुत बड़ी खबर है। कोहना मश्क ढूंढने हम कौन से? मश्क होता क्या? कह रहे हो कोहना मश्क होता क्या? बड़े मेहनती नामवर कहना चाह रहे होंगे वैसे, है ना? मेहनती क्यों फारिग होंगे इख्तियार भाई? मैं अपने लफ्ज पे खड़ा हूँ जो मैंने कह दिया। अच्छा, पुराने और बुजुर्ग आपका मतलब ये? नहीं मैं नहीं, ये भी अच्छा, ये तो कसौटी हो गई। कोहना मश्क जो है वो तो वैसे ये बता दें कि फाइनेंस मिनिस्टर्स में शामिल हैं या हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर जो बज़ाहिर बड़े मसरूफ नजर आते हैं लेकिन कारकर्दगी बेहतर नहीं है, उनको रिवीव किया जाएगा। हाँ, और उसमें फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं होंगे। मैं किसी का नाम क्यों लूं, उसकी जरूरत ही कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया, बात बीच में रह गई मेहताब हैदर साहब, मगर बहुत सी बातें हो गई। हर बंदे को मालूम, बहुत सी बातें हो गई, बहुत सी बातें रही हैं। इस बजट का बहुत इंतजार है, इसके बाद बहुत सी तब्दीलियां हैं। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।